Hello student, a very fine good morning to all of you. Student, now we have to study lesson 9 chapter name living organism and their habitat. Okay student, so firstly write down chapter name lesson 9. Chapter name living organism and their habitats. Okay student, in this chapter we will student in this chapter on previous day we had studied about terrestrial habitat, adaptation in terrestrial habitat, and we had studied adaptation in mountain region. Student, in terrestrial habitats we have to study now we have to study forest region. Forest regions. Adaptation in forest regions. This is the topic for today, and in this topic we will study about how animals adapted in forest region, and how can they protect them by their predators. Okay student, the famous animal of the forest region is lion. It is called king of the forest. Student, lion. You already know that lion is a very strong animal. It has very strong claws, and it can kill with the help of their claws. It can kill animals. It means their prey, and thus they are adapted to live in the forest region. Next animal is deer. Student, and deer is a fast runner animal. It has a very strong and long legs, and their hoofs are also very strong. With the help of their strong legs, they can they can run very fast, and they can protect them by their predators. Also, their the color of the deer is brown, and they live in the brown bushes, and it can also protect them from their predators, and it can hide in the bushes because the color of the bushes are also brown, and it matches with the color of the deer. And also deer uh, deer have very strong teeth to eat grass and vegetation found in the forest region. Thus deer habitude I mean adapted to live in the forest region. कहने का मतलब है स्टूडेंट कि फॉरेस्ट रीजन में एडेप्टेशन क्या है. तो जैसे फॉरेस्ट रीजन का सबसे फेमस जो एनिमल है जिसको किंग ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है वो है लायन. आप ऑलरेडी जानते हो कि इट हैज वेरी शार्प पॉइंटेड टीथ. इसका जो टीथ होता है बहुत शार्प पॉइंटेड, ये काफी स्ट्रांग होता है, और इसके जो फिट होते उस क्लॉज होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं, और आसानी से ये दूसरे इसके हेल्प से आसानी से ये दूसरे एनिमल को अपना प्रे बना सकता है. ओके तो और आप जानते हो कि फॉरेस्ट रीजन में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं जिनका आसानी से लाइन जो है प्रे बना के, और दीज आर द एडेप्टेशन that habituate the lion to live in the forest. ये सारे चीजें क्या है उसे हैबिचूट बनाती हैं फॉरेस्ट रीजन में लिव करने के लिए. नेक्स्ट जो एनिमल है वो डियर है. तो डियर को फास्ट रनर कहा जाता है. वो बहुत तेज दौड़ता है बिकॉज उसके जो फुट होते हैं काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, उसके जो हुप्स होते हैं वो भी काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, हार्ड होते हैं, और वो कहाँ रहता है बुशेस में रहते हैं. तो उसका भी कलर ब्राउन होता है और बुशेस का भी कलर क्या होता है ब्राउन. तो जब भी कोई और दूसरा क्या होता है उसके ईयर जो होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं. इट हैज़ वेरी लॉन्ग, और ऊपर की तरफ खड़े होते हैं ऐसे
जैसे ही कोई प्रेडेटर्स आता है तो दूर से ही वो उसकी आवाज़ सुन लेता है और काफ़ी तेज़ दौड़ते, तो काफ़ी तेज़ दौड़ते हुए वो दूसरा क्या उसके साथ ये कंडीशन होता है कि उसका कलर ब्राउन होता है और बुशेस में वो रहता है, तो बुशेस के भी कलर क्या होते हैं, ब्राउन होते हैं। वो आसानी से उसमें अपने आप को हाइड कर लेता है और इस तरह से वो अपने प्रेडेटर से, यानी प्रेडेटर्स क्या है तो द एनिमल दैट किल अदर एनिमल फॉर देयर फूड। ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल को क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए मारते हैं। तो डियर को जैसे प्रे कौन बनाता है, लायन हुए, टाइगर हुए, पैंथर हुआ। तो ऐसे इन एनिमल से अपना क्या करता है, सुरक्षा कर लेता है, अपने आप को सेफ रखता है। तो दीज आर द और दूसरा क्या है कि वो क्या है, चूंकि हार्बीवोर्स है, वो वेजिटेशन को ईट करता है, ग्रास, तो उसकी जो टीथ होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ब्रॉड होते हैं और वो आसानी से वेजिटेशन को ईट करता है। ओके, तो दीज आर एडेप्टेशन दैट habituate the deer to live in the forest region. Okay student, and this type of adaptation also adaptation of other animals that live in the forest region. Okay student, the next topic is aquatic habitats. aquatic habitats क्या है, तो ऐसे habitat जो क्या है, वाटर के अंदर है। तो you already know that there are so many animals that live in the water. These are called aquatic animals. What are the adaptation in the aquatic animal? So first, oceans. The animals in the famous animal of the aquatic habitat, fish. So you already know that it has gills and it can easily take oxygen that dissolve in the water, and its body is in streamline that help them to swim easily in the water. Student, आप ऑलरेडी जानते हो कि मछलियाँ जो होती हैं, फिशेज जो होती हैं, उनको गिल्स होते हैं और इस गिल्स के हेल्प से वो वाटर को अपने माउथ में लेती हैं। उसमें जो ऑक्सीजन होता है वाटर में, जो वाटर आप जानते हो कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O, यानी इसमें क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। ओके, तो इसमें जो ऑक्सीजन है उसको वो आसानी से टेक कर लेता है। अब इसके बारे में आप बायो जब आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि क्या होता है ऐसा कि वो अपने माउथ में जब वाटर को लेती हैं, आई मीन अपने गिल्स में, तो वो कैसे ऑक्सीजन को उसमें से ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेती है। ओके स्टूडेंट, दूसरा क्या है कि उनका बॉडी जो होता है स्ट्रीमलाइंड होता है, यानी नाव के बोट के आकार में होता है। तो उससे क्या होता है, उन्हें वाटर में आराम से मूव करने में हेल्प मिलता है। तीसरी कंडीशन आपको देखे होंगे कि थोड़ी देर हम अपने बॉडी पार्ट अगर वाटर में, तो वो क्या होता है, स्किन सड़ जाएगा ना, लेकिन उनमें ऐसा नहीं होता है। तो उनके बॉडी पे स्कल होते हैं, आप देखे हो ना, वाइट कलर के स्कल होते हैं जो उन्हें क्या कहते हैं, वाटर से प्रोटेक्ट, उनके स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। उनके स्किन पे क्या होते हैं, स्कल। ओके स्टूडेंट, एंड many animals just like octopus, frog, they have different types of adaptation that habituate them to live in the ocean. Next is ponds and lakes. Student, now we have to study adaptation in plants that found in the aquatic region. अब एक्वेटिक रीजन में पाए जाने वाली जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या है एडेप्टेशन होता है, तो जैसे लोटस है, वाटर लिली है, और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये प्लांट्स हैं जो पॉन्ड्स वगैरह में, वेल्स के सरफेस पे आप देख। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन द एक्वेटिक रीजन। एक्वेटिक रीजन में 3 तरह के प्लांट होते हैं। एक तो प्लांट होता है अंडर वाटर प्लांट, जो बिल्कुल वाटर के अंदर होता है, ठीक है। तो उसका क्या होता है, वाटर के अंदर होता है और वो उसकी जो रूट होते हैं वो नीचे तक काफी जाते हैं। वो क्या करते हैं, सॉइल से
मिनरल्स वगैरह लेते हैं जिसके हेल्प से ये करते हैं, वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। नेक्स्ट होता है फ्लोटिंग प्लांट, तैरता हुआ पौधा। तो वो क्या होते हैं, उनके जो रूट होते हैं वो नहीं होते हैं, वो नीचे तक नहीं होते हैं, वो वाटर के ऊपर फ्लटिंग होते करते हैं, यानी तैरते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज द स्टूडेंट underwater plants, floating plant, and next is the submerged plant. Okay, and so many types of adaptation that found in this type of plant. And student, these are the adaptation in the aquatic plants. And student, if you have any problem you can ask me. And homework for today, describe adaptation in forest region. This is the homework for today. Okay student, and if you have any problem you can ask me.